तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ये अहम खबर। Foundation stone for the Old City Metro Rail project. మైనారిటీ విద్యార్థుల కోసం రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ గోల్కొండ ఫోర్ట్ దగ్గర ఒక అద్భుత వరంగా విద్యావరంగా అందించి మరి ఇక్కడికి వచ్చారు. మనకు తెలుసు ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్న బాబు జగజీవన్ రావు భవనాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు కూడా చదువు ఒక్కటే మన అభివృద్ధికి మూలమన్నారు. ముఖ్యంగా గర్ల్స్ ఎడ్యుకేషన్, ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ విమెన్ సందర్భంగా విమెన్ ఎడ్యుకేషన్, literature for the literacy in the girls and women is so important. దాదాపు 5.5 కిలోమీటర్ల పొడవైనటువంటి ఎంజీబీఎస్ టు ఫలక్నామా కారిడార్ గ్రీన్ లైన్ జేబీఎస్ ఫలక్నుమాను ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడు శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. కొత్త ప్రభుత్వం మన పాత నగరానికి అందిస్తున్న సరికొత్త కానుక. ఈ అలైన్మెంట్ దారుల్ షిఫా, పురానీ హవేలీ, ఎతెబార్ చౌక్, అలీజా కోట్లా, దయారా మీర్ మోమిన్, హరిబౌలి, షాలిబండ, షంషీర్గంజ్, అలియాబాద్ ఇన్ని ప్రాంతాల ప్రజలకు ఇది మెట్రో రైల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు గివ్ ది ఫెసిలిటీ. మీరంతా సైలెన్స్గా స్క్రీన్ వైపు చూస్తున్నారు. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి ముఖ్యమంత్రి గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. మనం जोर से तालियां देके शुक्रिया अदा करना सीएम साहब को. दिस इज a great gift given to this area and thousands of people are going to be benefited for their daily needs. Most comfortable journey in the metro train. Keeping the historical importance of Charminar and Salazar Museum, Shalibanda and Falaknuma, and the government has given titles of the stations. Honorable CM ప్రజల్ని అభివాదం చెబుతూ ఉన్నారు. అందరూ మీ సీట్లలో కూర్చోవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. Honorable CM Sri Revanth Reddy sir and Honorable Ministers, Honorable local MP Sahab, local MLA Sahab and other MLAs, MLCs and advisors of government, Muhammad Ali Shabir Sahab and VM Narendra Reddy Sahab and all other dignitaries, they are going to come on to the dais soon. We are thankful to Honorable Minister for giving this great facility to the people of this area.
గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులైన పార్లమెంట్ సభ్యులు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు, స్థానిక శాసనసభ్యులు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు, అడ్వైజర్స్ మహమ్మద్ అలీ షబీర్ గారు, హర్కార వేణుగోపాలరావు గారు, వేం నరేందర్ రెడ్డి గారు, ఇంకా డిప్యూటీ మేయర్ మోతే శ్రీలత శోభన్ రెడ్డి గారు, ఇంకా స్థానిక శాసన మండలి సభ్యులు, శాసనసభ్యులు, ఇంకా ఎందరో పెద్దలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు వేంచేస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారితో పాటు ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్సీ బల్మూరు వెంకట్ గారు, ఇంకా అంజన్ కుమార్ యాదవ్ గారు, ఆనరబుల్ ఎంపీ రాజ్యసభ. అండ్ I request all the dignitaries to take their seats. Honorable CM will be coming soon onto the dais, please. Khadri sahab. वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी साहब का इस्तकबाल है। वज़ीर आला के साथ मैं तमाम डिग्निटरीज़ और एमएलएस और एमएलसीज़ का भी इस्तकबाल करता हूं डाइस पर।
all of us will be very happy to receive our beloved Chief Minister Sri Revanth Reddy garu onto the dais. ఈ ఓల్డ్ సిటీ మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్ట్ దాని రూట్ మ్యాప్ గమనించి వేదికపైకి వస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు. ముఖ్యమంత్రి గారితో పాటు గౌరవనీయులైన అడ్వైజర్స్ వేం నరేంద్ర రెడ్డి గారు, మహమ్మద్ అలీ షబీర్ గారు, హర్కార వేణుగోపాలరావు గారు ఉన్నారు. అలాగే వీ హ్యావ్ అవర్ యంగెస్ట్ లీడర్స్ ఇన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు ఎంపీ రాజ్యసభ, బల్మూరు వెంకట్ గారు ఆనరబుల్. వీళ్ళందరూ ఇంకా సభలో కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఎమ్మెల్సీస్ ఎమ్మెల్యేస్ అవైలబుల్ టు టేక్ దే సీట్స్ ఆన్ ది డయాస్ ప్లీజ్ బిఫోర్ ఆనరబుల్ సీఎం టేక్స్ హిస్ సీట్. इज़्ज़तमाब वज़ीर आला श्री ए रेवंत रेड्डी साहब का डाइस पर इस्तकबाल है। जनाब असदुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री मोहम्मद अली शबीर साहब का भी इस्तकबाल है। గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి వర్యులకి, గౌరవనీయులైన ఆనరబుల్ ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారికి, ఆనరబుల్ అడ్వైజర్స్ మహమ్మద్ అలీ షబీర్ గారికి, వేం నరేంద్ర రెడ్డి గారికి, హర్కార వేణుగోపాలరావు గారికి, ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్సీస్ ఎమ్మెల్యేస్ అందరికీ స్వాగతం పలుకుతూ ఐ రిక్వెస్ట్ మహమ్మద్ అలీ షబీర్ గారు, అడ్వైజర్ టు గవర్నమెంట్, టు గివ్ హిస్ వెల్ స్పీచ్ ఆన్ దిస్ అకేషన్. जनाब मोहम्मद अली शबीर साहब एडवाइज़र टू गवर्नमेंट से गुजारिश है आज की गैदरिंग से खिताब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मी अंदर की नमस्कारम, गुड इवनिंग आल्सो। मेरे अजीज भाइयों, आज इस कदीम शहर हैदराबाद में एक जश्न का माहौल दिख रहा है। मैं और हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर साहब
और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब गाड़ी में आ रहे थे तो बुरखापोश खवातीन भी बड़ी तादाद में दिखे। मैंने कहा कि भाई इतनी बड़ी तादाद में हमारी बहनें क्यों ठहरे हुए हैं, हमारे लड़कियां क्यों ठहरे हुए हैं? तो कहे कि चीफ मिनिस्टर साहब का खैर मकदम के लिए ठहरे हुए हैं। ये सुनने के बाद हमें वाकई बहुत मसरत और खुशी हुई। भाइयों और बहनों, आज के इस जलसे में जो कई बरसों का पुराना ख्वाब था, 12 साल का ये ख्वाब था कि हैदराबाद में मेट्रो रेल आए और यहाँ के अवाम या इमलीबन बस स्टेशन से लेकर यहाँ फलकनुमा चंद्रायन गुट्टे से लेकर एयरपोर्ट तक हम लोग सफ़र कर सके। ये प्लान पहले तो सिर्फ इमलीबन से लेकर फलकनुमा तक 5.5 किलोमीटर का पेंडिंग प्रोग्राम था, लेकिन 12 साल तक हम सब लोग पुकारते रहे, चीखते रहे, लेकिन चीफ मिनिस्टर को आवाज़ सुनी नहीं आई। साबिका चीफ मिनिस्टर को वो खाली कान खुश करते रहे, हर बजट में 500 करोड़ अनाउंस करते रहे, लेकिन दिए कभी पैसा नहीं। लेकिन आज आपके साथ में, आपके दरमियान में हमारे तेलंगाना के हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर, नौजवान साथी, नौजवान चीफ मिनिस्टर आली जनाब रेवंत रेड्डी साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, हम पुराने शहर को पुराना नहीं रहने देंगे। आज के बाद पुराना शहर नहीं, शहर हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद बोलना है। इसको पुराना कहकर हमारे जिस्म का एक हिस्से को अलग नहीं करना है। हैदराबाद एक जिस्म है, उसको एक हिस्सा पुराना शहर बोलकर उसको बैकवर्ड नहीं रख सकते। इसको तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके साथ साथ आज के जलसे में आपके हमारे यहाँ के लोकसभा के एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन साहब और यहाँ पर आए हुए हमारे सारे एमएलएस, हमारे एमपीस और एमएलसीस और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सबका मैं तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। तो आज ये बात कहना चाह रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब जब ट्रेन की हुकूमत बनी तो पहले हम ऐसी कुछ सरसरी बात कर रहे थे, कहे कि शबीर भाई, हमको ये बात समझ में नहीं आ रही कि मेट्रो ट्रेन हैदराबाद के अंदर से नहीं जाकर वो लेके जा रहे हैं कि नए शहर के अंदर मियाँपुर से लेकर एयरपोर्ट को। ठीक है, ले जाने दो, लेकिन ये लोग क्या गुनाह कर रहे हैं कि यहाँ ट्रेन क्यों नहीं जा रही है? जो थिकेस्ट पॉपुलेशन एरिया है वहाँ क्यों नहीं जा रही है? और उन्होंने एक बात कही जो मेरे दिमाग में भी नहीं आई। उन्होंने कहा कि आप महसूस करें कभी शबीर भाई, जब बड़े लोग जाते हैं वहाँ से माधवपुर से, मियाँपुर से, तो वो गाड़ी सेल्फ ड्राइव करते जाते हैं, रेलवे स्टेशन में रखते हैं और स्टेशन में बैठते हैं, फ्लाइट में बैठते, फिर वापस आते, फिर गाड़ी ड्राइव करते घर आ जाते। अरे जब पुराने शहर के अंदर से कोई आदमी जाता है, चाहे वो उम्रे के लिए जाओ, चाहे हज के लिए जाओ, चाहे गल्फ कंट्री में कमाने के लिए जाए, चाहे हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, उसके साथ मिनिमम 50 लोग जाते हैं छोड़ने के लिए, फिर रिसीव करने के लिए भी 50 से 100 लोग जाते हैं। ये फुल ट्रैफिक का एरिया है। यहाँ उन बेचारों को नहीं देकर पैसे वाले दौलतमंदों के लिए सोच रहे हैं। मेरी सोच वो नहीं है। मेरी सोच ये है कि शहर के अंदर चाहे कोई भी मजहब का हो, यहाँ के लोग जो भी जाते हैं गल्फ में कमाने के लिए हो, चाहे उम्रे के लिए हो, हज के लिए हो, यहाँ और कोई मकसद से जाने वाले हो, तो उनको छोड़ने के लिए जाने वाले भी बड़ी तादाद में होते हैं, उनको रिसीव करने के लिए बड़ी तादाद में हो। फिर एरिया कैसे डेवलप होगा? मैं बताते चलूं रेवंत रेड्डी साहब को, जब 2008 में फाउंडेशन डाले 2008 में फाउंडेशन डाले राजशेखर रेड्डी साहब, और इत्तेफाक से मैं भी जब था इंचार्ज हैदराबाद मिनिस्टर। आज मुझे इस बात का भरोसा है, हम सेकंड टाइम फिर नाम यहाँ पर आज फाउंडेशन को आए हैं।
अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब राजशेखर रेड्डी सीएम थे, मैं इंचार्ज मिनिस्टर था, हम लोग जब ये चंद्रायन गुट्टा रोड, जब अवैसी साहब भी थे, अकबरुद्दीन साहब भी थे, सब लोगों ने मिलकर कहा कि भाई चंद्रायन गुट्टा ब्रिज और बंडलागुड़ा आज रोड आने के बाद से हैदराबाद की तरक्की, पुराने शहर की तरक्की शुरू हुई है। और शमशाबाद एयरपोर्ट आने के बाद उसी तरह के जब ये ट्रेन आएंगी, आप खुद भरोसा नहीं करेंगे कि कितने लोग बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने नौजवानों को उसके रोजगार हासिल होगा और शहर की तरक्की कैसे होगी। क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब, वो हमेशा मैं कई सालों से जानता हूं, वो बड़े मजबूत पकड़ते हैं किसकी कोई भी चीज को, वो छोड़ने वाले नहीं हैं। जब उन्होंने देखा एक इनके, वो हमेशा तो रेवंत रेड्डी जी के बारे में ज्यादा बोलते हैं, वो चाहे खाली ट्रेन ही नहीं, अभी हाल ही में देखा कि 200 करोड़ रुपए रोड वाइडनिंग के लिए खाली जमा खर्च नहीं बल्कि जियो के साथ फंड्स भी रिलीज करने वाले कोई सीएम है, वो है रेवंत रेड्डी साहब। और यहाँ के एमपी साहब ने भी बहुत सारे पूछे हैं और सीएम साहब खुद अनाउंस करेंगे कि यहाँ मेडिकल होगा, बड़े बड़े दवाखाने होंगे, आईटी हब होगा और एजुकेशन हब के लिए भी पूछ रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है रेवंत रेड्डी साहब आप लोगों को नाराज नहीं करेंगे, बल्कि आपके उमंगे और दावों से भी ज्यादा करके बताकर ये बात कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी साहब पुराना शहर नहीं देखना चाह रहे, हम बराबर नया शहर और पुराने शहर को मिलकर तरक्की करना चाह रहे। जय हिंद, खुदाफिज। जनाब मोहम्मद अली शबीर साहब का शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करता हूं हरदिल अजीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से आवाम से खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शय नशीन पर तशरीफ़ फरमा वज़ीर आला तेलंगाना मोहतरम जनाब रेवंत रेड्डी साहब, एडवाइज़र अक़लियती बहबूद, बैकवर्ड क्लास और दलित जनाब मोहतरम मोहम्मद अली शबीर साहब, नौ मुंतखब शुदा रुकन पार्लिमान जनाब यादव साहब, मेरे तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली व रुकन क़ानून साज कौंसिल और तमाम दीगर सियासी पार्टियों के ज़िम्मेदारान, मैं सबसे पहले अपनी जानिब से और हैदराबाद की पार्लियामेंट की आवाम की जानिब से जनाब रेवंत रेड्डी साहब का, वज़ीर आला का, हैदराबाद के इस क़ल्ब में, हैदराबाद के इस दिल में हम आपका खैर मुक़द्दम करते हैं, आपका वेलकम करते हैं। और मैं ये बात, हमारी पार्टी ने ये बात ऐवान असम्बली में कही है, मैं दोबारा इसको दोहराना चाहता हूँ कि तेलंगाना की आवाम ने एक फ़ैसला दिया है और तेलंगाना की आवाम ने जनाब रेवंत रेड्डी साहब और उनकी पार्टी को इख्तियार दिया है। हम उसका एहतराम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी तरीक़े से जो आवाम को वादे किए उसको पूरा करेंगे। मुझे यकीन है कि उन वादों को पूरा करेंगे। और मैं मोहतरम वज़ीर आला को ये बात बताना चाहता हूँ कि आपके पास 5 साल का मैंडेट है, आप इत्मीनान से, आराम से अपना काम करिए और हम भी अपनी तरफ से आपको पूरा ताउन देंगे ताकि तेलंगाना और मजबूत एक रियासत बन सके। हमारी ये कोशिश होगी कि तेलंगाना में जो अमन बरकरार है पिछले 10 साल से, इंशाअल्लाह ताला उस अमन को हमको और मजबूत करना है। और एक बात याद हम सबको रखना है कि जितना अमन मजबूत होगा उतनी ऊंचाइयों पर तेलंगाना को आप और हम और रेवंत रेड्डी साहब लेकर जा सकते हैं। चौथी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको ना सिर्फ अपने वतन अजीज़ को बल्कि हमारी रियासत को फिस्ताई ताकतों से बचाना है। फ़िरक़ा परस्ती और ये नफ़रत का जो माहौल पूरे मुल्क में आज है, उस नफ़रत के माहौल को हमको रोकना है। और तेलंगाना में एक भाईचारगी का माहौल है और आप और हम जानते हैं वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं
जो आपके और हमारे दिलों को तोड़ना चाहती है, जो हमारी इस मोहब्बत की तहजीब में जहर भरना चाहती है, तो हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो नफ़रत आमेज़ बातें हैं, जो लोग दिलों को तोड़ने की बात करते हैं, जो लोग घरों को तोड़ने की बात करते हैं, आपको और हमको मिलकर ऐसी ताकतों को कमज़ोर करने की ज़रूरत है। और मजलिस शुरू से कोशिश करती आई है कि ऐसी ताकतों को कभी भी किसी मुकाम पर इख्तदार ना मिले। तो मैं अपनी जानिब से चीफ मिनिस्टर को ये बता रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि ये नफ़रत ख़त्म हो, मोहब्बत आम हो और लोग आपस में सुकून से ना सिर्फ तेलंगाना में बल्कि अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। मैं आज आपको बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जब मेरी वज़ीर आला से बातचीत हुई, मैंने उनको मुबारकबाद दी। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि पुराने शहर में हल्क़े असम्बली याकूतपुरा में 3 रोड वाइडनिंग करवाना है और बहादुरपुरा असम्बली हल्क़े में इंजन बौली में बस डिपो से लेकर वट्टेपल्ली की मंदिर तक, याकूतपुरा में शेख फैज़ कमान से डबिलपुरा ब्रिज, और दूसरा नागाबौली की रोड, और तीसरा याकूतपुरा बड़ा बाज़ार से मदरसा रहमानिया भवानी नगर की रोड। तो मैं सीएम ने मुझसे पूछा कि कितनी रकम की आपको ज़रूरत है। मैंने कहा ये 4 काम करने के लिए बहुत ज़्यादा रकम है की ज़रूरत है। अगर आप कम से कम 120 करोड़ रुपये दे देंगे तो ये काम शुरू हो जाएगा। तो मुझे 2 दिन के बाद सीएम ने फ़ोन करके बताया कि मैंने 200 करोड़ रुपये का जियो जारी किया, सर साहब आप ये रोड वाइडनिंग का काम करवाइए। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर जब ये प्रोग्राम बन रहा था आज का इफ्तिताह करने का, तो मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि मिरालम के पास एक STP टैंक का भी इनाग्रेशन करना है। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि वहाँ पर मिरालम टैंक के ऊपर एक ब्रिज की बहुत ज़रूरत है। हम लोग तो नेहरू ज़ू से आरामगढ़ तक एक फ्लाईओवर बन रहा है, मगर ये ब्रिज की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सीएम साहब मुझे बताए हैं कि उन्होंने उसकी टेक्निकली मंजूरी दी है और इंशाअल्लाह ताला वो ब्रिज का भी अनकरीब में हुकूमत की तरफ से उसको मंजूरी मिल जाएगी। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और रास्ते में मैंने सीएम को बताया कि हमको यहाँ पर जो हैदराबाद शहर है, हैदराबाद का दिल ये इलाक़ा है, यहाँ पर हमको उस्मानिया हॉस्पिटल एक नया बनाने की ज़रूरत है। तो मैं फिर से सीएम साहब के दरमियान में, आवाम के दरमियान में खड़े होकर आप तमाम की तरफ से ये गुजारिश करूँगा कि उस्मानिया हॉस्पिटल की एक नई बिल्डिंग बनाई जाए। और जो जेल हमारे पास है, चंचलगुड़ा की जेल, वो अब शहर में आ चुकी है। अगर हुकूमत उसको शहर के बाहर किसी जगह पर मुंतकिल करे और उस जेल चंचलगुड़ा की ज़मीन को वहाँ पर KG से PG कैंपस एक बनाएंगे, तो अहलियान हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के के लोगों को एक बहुत बड़ा इससे फ़ायदा होगा। और हमारे इस पेटला बुर्ज पर एक सिटी आर्म रिज़र्व है, उसको भी शहर हैदराबाद से बाहर अगर लेके जाएंगे तो ज़मीन को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि चीफ मिनिस्टर इस पर गौर करेंगे। और आखिर में चीफ मिनिस्टर साहब, आपने DSC का ऐलान किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उर्दू मीडियम के पोस्ट को अगर आप डी-रिज़र्व करेंगे तो इससे जो बच्चे इस डी-रिज़र्व अगर नहीं करेंगे तो कई पोस्ट खाली जाएंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उसमें रिजर्वेशन करना पड़ता है। हुकूमत के पास एक इख्तियार है कि उसको डी-रिज़र्व करे तो जो दूसरे बच्चों को भी उर्दू मीडियम पोस्ट का फ़ायदा होगा। और आज चीफ मिनिस्टर हल्क़े असम्बली कारवान में 20 करोड़ की लागत से एक टेमरिस के स्कूल की बिल्डिंग का भी इफ्तिताह किए। मैं इसका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और हम वज़ीर आला से उम्मीद करते हैं कि आप इन तमाम कामों की तरफ आप नज़रसानी करेंगे। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैं वादा कर रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है मूसी डेवलपमेंट का, आप उसमें जहां कहीं भी आपको हमारी पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी, हम भी चाहते हैं कि मूसी डेवलपमेंट का पूरा काम आपके टेन्योर में मुकम्मल हो, ताकि यहाँ की आवाम को एक बहुत बड़ा इससे फ़ायदा होगा, इकनॉमिक प्रोग्रेस होगा, यहाँ पर
खुशहाली आएंगी, प्रॉस्पेरिटी आएंगी। और अभी हमको NVS रेड्डी साहब CM के सामने बताए कि ना सिर्फ यहाँ पर मेट्रो का स्टेशन बनेगा, बल्कि चंद्रायण गुट्टा से जो नागोल से एयरपोर्ट की लाइन आएगी, वो इंशाल्लाह यहाँ से चंद्रायण गुट्टा से मैलार्दोपल्ली और फिर मैलार्दोपल्ली से एयरपोर्ट। तो मुझे यकीन है कि जब काम मुकम्मल हो जाएंगे तो इससे इस इलाके के यहाँ पर रहने वाले नौजवानों को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और चीफ मिनिस्टर की इत्तला के लिए बता रहा हूँ, नॉलेज के लिए, कि हैदराबाद के पार्लियामेंट के हलके से कम 10 से 15 हज़ार बच्चे रोज़ हाईटेक सिटी को जाते और रात में आते। उसमें हमारी बेटियां भी हैं, नौजवान बच्चे भी हैं। तो मैं CM का, जनाब रेवंत रेड्डी साहब का दिल की गहराइयों से आपका वेलकम करता हूं और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 2028 से पहले आप आकर, आप और हम उस ट्रेन में बैठ के आएंगे इंशाअल्लाह ताला, जुबली बस स्टैंड से लेकर यहाँ तक इंशाअल्लाह। क्योंकि एयरपोर्ट का काम थोड़ा लंबा है, मगर मुझे यकीन है कि वो काम भी प्रोग्रेस होगा। मैं जानता हूँ रेवंत रेड्डी बड़े ज़िद्दी आदमी हैं और उनकी ज़िद उनको यहाँ तक लेकर आई, और हम भी, हमारी पार्टी के लोग भी सर फिरे हैं, मगर अवाम ने एक फ़ैसला दिया है, अवाम ने एक फ़ैसला दिया है, हम उस फैसले का एहतराम करते हैं। और रेवंत रेड्डी साहब, आप पूरे आराम से 5 साल काम करिए, तेलंगाना की डेवलपमेंट के लिए, तेलंगाना के प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए MIM पार्टी आपके साथ खड़े रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ఎంపీ సాబ్ కు శుక్రియా అదా करते हुए నిన్న ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నేడు మెట్రో రైల్, అలాగే నిన్న బాబు జగజీవనరావు భవన్, నేను మైనారిటీ పాఠశాలలు ప్రతిరోజు ప్రతిపూట శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలతో ప్రజా వేదికలపై ప్రజలకు ఉపయోగపడే పండుగల్లాంటి వేడుకలతో సాగుతోన్న గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, కొత్త ప్రభుత్వం పాత నగరానికి ఇచ్చిన సరికొత్త కానుక మెట్రో రైల్. ఈ సందర్భంగా ఆనరబుల్ CM గారి సందేశం. హైదరాబాద్ నగర అభివృద్ధిలో భాగంగా గౌలిగూడ, एक मिनट అమ్మ, అక్కడి నుంచి ఫలక్నామా వరకు మెట్రో రైల్ నిర్మాణానికి సంబంధించి ఈరోజు భూసేకరణ అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం తీసుకుంటే, ఈ కార్యక్రమంలో నాతో పాటు ముఖ్య అతిథులుగా హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులు, AIMIM అధ్యక్షులు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్నారు. వారితో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రత్యేక సలహాదారు మొహమ్మద్ అలీ షబీర్ గారు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. హైదరాబాద్ పార్లమెంట్లో ఉన్న మిత్రుల, శాసనసభ్యులు అందరూ, రాజ్యసభ సభ్యులు, ఎమ్మెల్సీలు, అదేవిధంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ అధికారులు, మెట్రో రైలు అధికారులు, హైదరాబాద్ నగర అభిమానులందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఒక మంచి కార్యక్రమం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటే ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన మీకు అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నా. మిత్రులారా, కులీ కుతుబ్ షాహీ నుంచి మొదలు పెడితే నిజాం నవాబ్ల వరకు ఈ నగరాన్ని అంతర్జాతీయ నగరంగా చేయడానికి అహర్నిశలు కృషి చేసి అంతర్జాతీయ చిత్రపటంలో హైదరాబాద్ నగరానికి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రతిష్టను తీసుకొచ్చి పెట్టినరు. ఆ ప్రతిష్టను కొనసాగించాల్సిన బాధ్యత మా ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. అందుకే నిన్న కంటోన్మెంట్ ప్రాంతంలో రోడ్ల విస్తరణ కావచ్చు, నేడు హైదరాబాద్ నగరంలో మెట్రో విస్తరణ కావచ్చు, వివిధ పాఠశాలలకు సంబంధించి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను
తీసుకెళ్లి ముందుకు వెళ్ళాలన్న ఆలోచనతోటి మా ప్రభుత్వం ఉన్నది. ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడే రాజకీయాలు, మిగతా సమయంలో అభివృద్ధినే ప్రధానంగా దృష్టిలో పెట్టుకొని అందరి సహకారం తీసుకొని మా ప్రభుత్వం అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించాలని ఆలోచనతో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నాం. भाई बहनों, मैं ज़्यादा भाषण नहीं देना चाहता हूं, मगर हमारे दिल की बात आप लोगों से बोलिए तो थोड़ा तसल्ली मिलेगा. ये शहर, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे कि ये ओल्ड सिटी, मैं नहीं मानता हूं. ये ओल्ड सिटी नहीं है, ओरिजिनल हैदराबाद सिटी. पूरी दुनिया में मशहूर है हैदराबाद शहर. हैदराबाद का मतलब ये ओरिजिनल हैदराबाद सिटी है. ये ओरिजिनल हैदराबाद सिटी को आगे ले जाने के लिए हम जितना कोशिश करना है उतना कोशिश कर रहे हैं. आप लोग सोचो, 2004 से लेकर 2014 तक ये शहर के लिए कृष्णा से, नागार्जुन सागर से पीने का पानी कांग्रेस पार्टी ने लाए, और गोदावरी के पानी हैदराबाद शहर यहाँ के जनता के लिए पीने का पानी कांग्रेस पार्टी ने लाए. हैदराबाद में जो मेट्रो रेल, जब शब्बीर अली साहब मंत्री थे, हैदराबाद शहर के इंचार्ज थे, इनका ही नेतृत्व में मेट्रो रेल के हम लोग कांग्रेस पार्टी ने बनाए. आज हैदराबाद शहर में जो भी आउटर रिंग रोड, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आईटी कंपनीज, फार्मा कंपनीज जितने भी लाए, अभी हमारे असद साहब ने कहा यहां से कुछ कम 15,000 लोग हाईटेक सिटी जॉब के लिए जा रहे हैं. वो आईटी कंपनीज पूरा, जब कांग्रेस पार्टी 2004 से लेकर 2014 तक जो तरक्की किए, जो सरकार ने कोशिश किए, आज बच्चों को, पढ़े लिखे सो बच्चों को आज नौकरी मिल रही. तो इसीलिए ये ओरिजिनल हैदराबाद डेवलप करने के लिए जैसे ही हमारे सरकार बनते ही मैं ऑफिसरों को सबको बुला के क्या चल रहा है भाई हैदराबाद में, क्योंकि मैं कहीं से नहीं आया, मेरा गांव यहीं बगल में है कल्वकुर्ती. हम आना जाना चंद्रन गुट्टा से ही जाना है, आना है. संतोष नगर से ओएसी हॉस्पिटल के सामने से हम जाना है, हमारे गांव से शहर को आना है तो इधर से ही घुसना है. तो इसीलिए हर गली गली कोने कोने हमको पता है हैदराबाद शहर में, खासकर चार मीनार के अगल बगल में, चंद्रायन गुट्टा में, बहादुरपुरा में, गली गली में क्या है क्या नहीं है, चुड़ी बाजार कहाँ है, पत्थरगट्टी कहाँ है, हर चीज हमें पता है. कबूतर खाना कहाँ है, मदीना में बिरयानी भी कैसा रहता है, चाय पिए तो कैसा रहेगा, हर चीज हमें पता है. हैदराबाद शहर के जो आपके मेरा मित्रों हैं, उनके दिल का धड़कन क्या है हमें पता है. इसीलिए जो हाईटेक सिटी, वहीं पर तरक्की चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, कुछ चर्चा हो रहा है. भाई हैदराबाद शहर में कोने कोने पे डेवलपमेंट करने के लिए हमारे सरकार सही तरीका से एक मास्टर प्लान बना रहे. ये मास्टर प्लान वाइब्रेंट तेलंगाना 2050 और 25 साल आगे जो डेवलपमेंट का प्लानिंग बना रहे, मास्टर प्लान बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे. उसी में मैं लंदन विजिट किए थे, थेम रिवर को देखने के लिए गया. वहां पर गया, किसके साथ गए मैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को मैं लेकर गए, क्योंकि आपके मदद से यहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, उनके एमएलए सब जीत के आ रहे. बार बार कोई भी जितना भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश किया हराने के लिए, मगर नहीं हो सका. वो चुनाव के समय पर कोशिश किए, पर चुनाव खत्म होते ही मैं सोचा भाई हैदराबाद शहर को हम दूसरी एक लेवल पे डेवलप करना है, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और एमआईएम को साथ में लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश की. इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी जी को मेरे साथ में मैं लंदन थेम रिवर को देखने के लिए
साथ में लेकर गए, हम साथ में गए, क्योंकि मेरे से ज़्यादा जानकारी उनको है। मेरा दोस्त अकबर भाई के बेटी वहीं बारिस्टर पढ़ रहे, जहाँ पर हमारे असद साहब ने पढ़ा है, और दो उनके परिवार में दूसरे बारिस्टर अभी बना रहे। असद साहब बारिस्टर पढ़ के अभी पूरा हिंदुस्तान में नाम कमाए, आप लोगों के तरफ से आवाज उठा रहे। लोकसभा में ऐसा गिन सकते आवाज उठाने वाले, उसमें से असद साहब एक है। ये एमआईएम के लिए नहीं तो कुछ माइनॉरिटी के लिए नहीं, 140 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान में, सबके तरफ से वो आवाज उठा रहे हैं पार्लियामेंट में। तो इसीलिए कभी भी अगर राजनीति, पॉलिटिक्स, जब चुनाव है, हमारे हिसाब से हम चुनाव लड़ते, हमारे एक बार चुनाव खत्म होते अपने शहर का ध्यान देने का जरूरी है। इसीलिए आज बहुत साल से, जिस दिन डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी जी था, तब मेट्रो रेल की शुरुआत किए। मार गौलीगुड़ा से लेकर फलकनामा तक 5.5 किलोमीटर जो काम पेंडिंग था, उसी वक्त मंजूर हुए थे। वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसीलिए वो मैं अभी काम के लिए ले लिए। और पिछले सरकार ने हाईटेक सिटी से लेकर पूरा आउटर रिंग रोड से एयरपोर्ट को ले जाने के लिए कोशिश की है मेट्रो। मैं सोचा भाई जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स में से कोई भी हमारे परिवार के साथ कोई भी एयरपोर्ट जा रहे बोले तो ड्राइवर भी साथ में नहीं आते, गाड़ी में जाते, गाड़ी वहां छोड़ के फिर बाहर जा रहे, फिर अगले हफ्ते वापस आके फिर गाड़ी लेके वापस आ रहे। मगर जुबली बस स्टैंड से लेकर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से लेकर नामपल्ली रेलवे स्टेशन, काचगुड़ा रेलवे स्टेशन, गौलीगुड़ा, फलकनामा, यहां से कोई भी गल्फ कंट्री जा रहे और कहीं जा रहे बोले तो, एक जा रहा बोले तो उनका पूरा परिवार 20, 25, 40, 50 लोग उसको छोड़ने के लिए वहां पर जा रहे। ये लोग टैक्सी में नहीं तो बड़ा बड़ा गाड़ी में जाने वाले नहीं है। इन लोगों को जरूरत है मेट्रो रेल का, गरीब लोगों को जरूरत है एयरपोर्ट में जाने का। इसीलिए मैं उप्पल से लेके, नागौल से लेके एलबी नगर तक, एलबी नगर से लेके ओवैसी हॉस्पिटल, वहां से चंद्रायन गुट्टा, चंद्रायन गुट्टा से लेकर मैलार देवरपल्ली, P7 रोड से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नया मेट्रो लाइन बनाए। एलबी नगर से हयात नगर तक नया लाइन डाल रहे, और अपना चंद्रायन गुट्टा से जो राजेंद्र नगर 100 एकड़ में हाईकोर्ट जो बना रहे, वहां तक हम मेट्रो ले लिए। रायदुर्गम से लेकर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट तक हम लोग मेट्रो बना रहे। मियापुर से लेके BHEL और रामचंद्रापुर तक मेट्रो एक्सटेंशन कर रहा है। इसका मतलब जहां जहां गरीब लोग हैं, नौजवान हैं जो नौकरी करने के लिए, इन लोगों के लिए हम लोग मेट्रो बना रहे, क्योंकि मेट्रो मिडिल क्लास के एक माध्यम है। ये उसमें जाने वाले जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स में बड़े बड़े जो कार है, गाड़ियां हैं, वो लोग बहुत कम चढ़ते। इसीलिए हम लोग सोचकर पूरा नया मेट्रो का फेज 2 नया तरीका से बनाए। आजकल प्राइवेटाइज होने के बाद गौलीगुड़ा बस स्टैंड पहले कितना नाम थे, आजकल तो वो नाम खत्म हो गए। इसीलिए चंद्रायन गुट्टा में जो मेट्रो जंक्शन चंद्रायन गुट्टा में बना है, तो कोई भी हो एयरपोर्ट को जाने वाले, एयरपोर्ट से वापस आने वाले चंद्रायन गुट्टा जंक्शन में उतर के यहाँ चंद्रायन गुट्टे को हमेशा याद रहना, चंद्रायन गुट्टा के नाम रहने के लिए हम बड़ा मेट्रो जंक्शन यहीं बना रहे। और असद साहब ने कहा रोड वाइडनिंग के लिए, मैं तुरंत हमारे ऑफिसरों को बुलाया। भाई असद साहब ने फोन किया, ओल्ड सिटी में हम रोड वाइडनिंग करना है, डेवलपमेंट ओल्ड सिटी नहीं है, वो ओरिजिनल हैदराबाद सिटी है, उसको हम पैसे देना। साहब ने पूछा 120 करोड़ रुपए। मैं बोला काम के लिए कितना होना, 200 दिए तो बहुत ठीक रहेगा, चलो 200 दे दो जी, वो तुरंत बना दिए। 3 दिन पहले मैं असद साहब को फोन किया था, ये फाउंडेशन स्टोन है साहब, ये आप जरूर हाजिर रहना क्योंकि एक अच्छा काम हम आगे ले जा रहे। मिरालम ब्रिज का बारे में जिगर निकाले, तुरंत मैं ऑफिसरों को बुला के बोले मिरालम ब्रिज का बना दो। 363 करोड़ का मंजूरी किए। महबूब नगर MLC का कोड था इलेक्शन के, इलेक्शन कोड है बोले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी हम लोग क्लियरेंस ले लिए। 2 दिन में मिरालम चरुगने जो STP प्लान कर रहे हैं, उसी दिन 2 दिन में वो ब्रिज का भी हम लोग फाउंडेशन स्टोन डालने वाले हैं।
इसका मतलब उस्मानिया हॉस्पिटल बनाने में जो चंचलगुड़ा में जो जेल है, केजी टू पीजी जो ये एरिया में जो मिडिल क्लास, जो सैदाबाद, संतोष नगर, मलकपेट, जगह जगह में जो लोग हैं जो पढ़ने के लिए केजी टू पीजी स्कूल के लिए असद साहब ने कहा जरूर वो बनाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। वो जेल वहां से शिफ्ट करके जेल भी अच्छा बना के उसको दूसरे जगह में जगह देके वो जेल बनाने का भी काम ले लेते। वहां पर यहाँ के बच्चों को पढ़े लिखने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। आप लोगों को मालूम है आज टिमरिस में बच्चे पढ़ रहे या नहीं तो डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर माइनॉरिटी के लोग पढ़ रहे। जो माइनॉरिटी मुस्लिम रिजर्वेशन दिया कांग्रेस पार्टी ने 4%, शब्बीर अली साहब और आजाद साहब ने बहुत कोशिश किए। उस दिन राजशेखर रेड्डी साहब को असद साहब, अकबर साहब असेंबली में बोले तो राजशेखर रेड्डी साहब तुरंत जो रिजर्वेशन देने के लिए कोशिश किया। आज जो माइनॉरिटी रिजर्वेशन 4% मिला है वो कांग्रेस पार्टी ने दिए। इसीलिए मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, राजनीति अलग है, डेवलपमेंट अलग है। डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं है। हैदराबाद सिटी में हर गली में डेवलप करने के लिए हमारा जिम्मेदारी है। मैं खुद खासकर इसीलिए म्युनिसिपल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो मेरे कने रखा हूं। मैं माइनॉरिटी वेलफेयर का भी मेरे साथ में रखा कि इसीलिए कोई किसी को मंत्री को दिए तो ज्यादा ध्यान नहीं देते। मुख्यमंत्री के हाथ में रहा तो माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए सीधा सीधा हम पैसे दिलवा सकते। बच्चों को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए हम कोशिश कर सकते। इसीलिए एडवाइजर, एक्सपीरियंस और लर्नर पर्सन शब्बीर अली साहब को मेरे साथ में लिए। भाई आप देखते रहो, मैं ऊपर से जो मंजूर करना है मैं करने के लिए मैं तैयार हूं। तो इसीलिए ये शहर, ये तेलंगाना अपना है। 94 से 2004 तक टीडीपी सत्ता में थे। 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल कांग्रेस पार्टी सत्ता में थे। 2014 से लेकर 2023 तक 9.5 साल, कुछ कम 10 साल बीआरएस पार्टी सत्ता में थे। आज मैं यकीन से, जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, 2024 से 2034 तक 10 साल हम लोग सरकार चलाएंगे। जितना फंड्स हैदराबाद शहर को जरूरी है, हर पैसे देने का, हर जगह में डेवलपमेंट करने का जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी लेंगे। जैसा असद साहब ने बोले 5 साल के अंदर ये पूरा हाईटेक सिटी में मेट्रो चढ़कर चंद्रायन गुट्टा जंक्शन में हम लोग उतरने के जो बात कहे, जरूर वो काम मैं करूंगा, वो जिम्मेदार मैं उठाऊंगा। इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको वादा कर रहा हूं, मेरा जिम्मेदारी है, जितने भी पैसे का जरूरत है पूरे पैसे सरकार के तरफ से जो लोन मिलेगा, जो केंद्र सरकार से जो लेना है, सबसे मिलके सबसे ले लेता हूं। और आगे भी जैसा साबरमती रिवर बनाया गुजरात में बोल के नरेंद्र मोदी जी बोल रहा है, परसों मैं उनको साफ कह दिए, भाई आप गुजरात को पैसे लेकर जा रहे, तेलंगाना में हमारा मूसा रिवर डेवलपमेंट के लिए आप पैसे कैसे नहीं देते? आप पैसे देना जरूर। 55 किलोमीटर गंडीपेट से जो निजाम सरकार ने बनाया, उस्मान सागर, हिमायत सागर, हैदराबाद शहर को पानी दिए। आज भी लोग कुछ देखना है तो, पानी देखना है तो उस्मान सागर, हिमायत सागर जाना पड़ रहा है। निजाम सरकार ने जो बनाया, निजाम सरकार ने बनाया, सो उस्मानिया हॉस्पिटल चल रहे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी चल रहे, आलिया कॉलेज चल रहे, निजाम कॉलेज चल रहे, निजाम ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, जजिकाना, नीलोफर हॉस्पिटल, सब सारे निजाम सरकार ने जो बनाया। आज भी लोगों को वही निजाम सरकार जो किया वही सेवा में हम इस्तेमाल कर रहे। इसीलिए आज भी जो हैदराबाद शहर में जो जितना भी डेवलपमेंट करना, खासकर मैं वादा कर रहा हूं, गंडीपेट से लेकर 55 किलोमीटर जो मूसी रिवर डेवलपमेंट है, हमारे जिम्मेदारी है। पूरा दुनिया में सबसे सुंदर मूसी रिवर डेवलपमेंट, मूसी रिवर फ्रंट बना के हम दिखाएंगे। कोई भी दुनिया में अगर बाहर निकलना है, देखने के लिए गए तो हैदराबाद शहर आना, मूसा रिवर फ्रंट देखना है। वो तरीका से हम लोग आगे तरक्की करेंगे और एमआईएम के पूरा उनके साथ मिलके जो हैदराबाद डेवलपमेंट में भाई के साथ में हम मिलके काम करेंगे।
हमको जब भी जरूरी पड़ी वो आश्वासन दिए। डेवलपमेंट के बारे में हमेशा एमपी साहब से, एमएलए साहब से हमारे चर्चा हो रहे, असेंबली में भी डिस्कशन हो रहे। कभी कभी असेंबली में हम 19-20 कुछ चर्चा भी हो गए, वो वहीं खत्म। मुद्दों पे हम चर्चा करते, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ऐसा कोई बात ऐसा होता ही नहीं जो लोग समझते आ रहे असेंबली में बोल लिए फिर बाहर अच्छा दोस्ती है। भाई डेवलपमेंट अलग है, राजनीति अलग है, अपोजिशन अलग है, पोजीशन अलग है। अपोजिशन पार्टी कुछ मुद्दे उठाए तो हमें भी जिम्मेदारी याद दिलाए तो हम आगे तरक्की करने के लिए अच्छा है। इसीलिए आज एक अच्छा माहौल बनाए हैदराबाद शहर में, जो मेट्रो के फाउंडेशन स्टोन डालने के लिए हमारे ऑफिसर्स और खासकर एमआईएम एमएलए सब साथ देकर ये अच्छा प्रोग्राम बनाए। आगे भी हम लोग और कुछ फाउंडेशन स्टोन डालना है, डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ जरूरी है। सब मिलके हैदराबाद शहर को, जो ओरिजिनल हैदराबाद है, ये शहर को आगे ले जाने के लिए आपके मदद जरूरी है। हमारे तरफ से जितना मदद देना है, पैसे देना है, डेवलपमेंट करना है, हम वो जिम्मेदारी से काम करेंगे। मैं आप लोगों को इतना ही बोलते मैं आपको शुक्रिया अदा करते हुए मेरा भाषण यहाँ खत्म कर रहा हूँ। धन्यवाद मित्रों। గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇది పాత నగరం కాదు, ఇది అసలైన హైదరాబాద్ అని చెప్పారు. మరి అసలైన హైదరాబాద్ ని మరింత సౌకర్యవంతంగా తీర్చిదిద్దు। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।